في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار ولي وحافظ وقائد وناصر ودليل وإله حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر بڑی تعداد ہے بسم اللہ اپنے آپ کو تھوڑا نہ سمجھے آل محمد نے اس نام کو بہت بلند کیا اللہ نے اس نام بلند کرنا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی رامی کی پہچان ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری یا علی حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد یزیدیت مردہ باد اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت بے شمار پاک سیدہ کے قاتلوں پہ لعنت بے شمار خانواد بطول پہ بآواز بلند اور تلاوت فرمائیں اللہم صلی علی محمد تھوڑا تھوڑا سے نکل جاتے جوان آپ تھوڑا سا اگر آگے آ جائیں تھوڑا تھوڑا نظر مولا میں منت ہی کروں گا چچا مقبول تھوڑا سا تھوڑا سا اگر آپ آگے آ جائیں گے بڑی مہربانی درود پڑھ دے مل کے بلند اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد اجازت ہے جی بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین و شفیع المذنبین و صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد بس خطبہ ہو گیا بسم اللہ جی کچھ فضائل کی سطریں آپ کے حوالے کرنا بسم چاہتا اللہ بسم اللہ ماشاءاللہ جی کون ہے فاطمہ اللہم صلی اللہ کیونکہ میرا دل ہے کہ میں آج کی مجلس بی بی کے ہی نام سے پڑھوں بسم اللہ بسم اللہ آتا ہے پڑھنے کا تو دن ہے ایام ہے جناب بے فاطمہ شک، الزہرا بے کے شک۔ اگر آپ اجازت دیں تو 4 مصرع سیدہ کی شان میں آپ ماشاءاللہ کون ہے فاطمہ کون ہے مادر شبیر و شبر کون ہے دختر رسول بسم اللہ کون ہے جناب بطول میں بی بی کی بارگاہ میں ایک التجا کر رہا ہوں ایک گزارش کر رہا ہوں کہ بی بی آپ کون ہیں مگر بی بی ہر پل تو رسالت کی گواہی میں کھڑی ہے تھوڑا سا میرے ساتھ بولنا بڑی مہربانی مجھے دعا فرمائیے گا کوشش کرنا جوانوں آپ بھی میرے ساتھ بولتے آنا تاکہ میری بات سمجھ میں آ جائے کون ہے فاطمہ کون ہے بنت محمد کون ہے جناب بطول کون ہے مادر شبیر و شبر سار اٹھانا بتانا چاہتا ہوں بی بی کون ہے میں کہہ رہا ہوں بی بی اے بنت محمد میں بتا رہا ہوں بی بی تیری شان کیا ہے ہر پل تو رسالت کی گواہی میں کھڑی ہے ہر پل تو رسالت کی مرشد مصرع رسول کی جگہ اللہ کرے رسول ہو جائے میں کہہ رہا ہوں ہر پل تو رسالت کی گواہی میں کھڑی ہے حیدر کو جو بھونکا ہے تو اس سے بھی لڑی سلامت رہے آپ جی یہی ہے جی میں دوبارہ پڑھتا ہوں یہی ہے سارا دباچہ یہی ہے ایام فاطمیہ کا توجہ فرمانا مگر ہر پل تو رسالت کی گواہی میں کھڑی ہے ہر پل تو رسالت کی گواہی میں کھڑی ہے حیدر کو جو بھونکا ہے تو اس سے بھی تھوڑا بولنا حیدر کو جو بھونکا ہے اب اتنا پیارا ماحول کر دیا ہے آپ نے کہہ دیا ہے مصرع دوبارہ پڑھا جائے لو میں 4 مصرع آپ کے حوالے مکمل کر رہا ہوں اللہ کرے تمہیں مصرع سمجھ آئے تو اتنا بولنا جتنا بولنے کا حق بنتا ہے کون ہے فاطمہ کون ہے بنت محمد ایسی بات پڑھ لو اگر مجھ سے پہلے ممبر میں پڑھی گئی ہو تو داد دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر پہلی بار پڑھوں تاریخ میں دکھاؤں گا میں نہ دکھاؤں مجھے رحیم الخان کی کسی ممبر میں دوبارہ آنے نہ دینا تم نہ بولو تو اپنے اندر طے کرنا مادر شبیر و شبر کے فضائل سن کے ہم گل اسنان سادی کے ساتھ بول کے ان سے کہ کون ہے فاطمہ مگر وہ بی بی ہر پل تو رسالت کی گواہی میں کھڑی ہے حیدر کو جو بھونکا ہے تو اس سے بھی لڑی ہے اے بنت محمد تو گمانوں سے پرے ہے جس ماں کی تو بیٹی ہے اسی ماں سے بڑی ہے جی سلامت رہے یہ اٹھو میں جی آپ سلامت رہے جی سلامت رہے یہ اٹھو میں ہاتھ سلامت رہے جی سلامت رہے برائے خشنود یہ مخدومہ کائنات بلند ترین صلوات صلی علی محمد ہاں جی
जी 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 वो तो पढ़े पता चलेगा साहिब बिहार में किस तरह जनाब फातिमा ज़हरा को लिखा। हाँ, हैदर को जो भौंका है तू उससे भी लड़ी है, ऐ बिन्ते मोहम्मद तू गुमानों से परे है, जिस माँ की तू बेटी है उससे भी बड़ी उसी माँ से बड़ी है। बे ये दलील पूछो गुलस में, ये भी दलील मैं आपको किताब के साथ दे रहा हूं, मेरे साथ पीडीएफ में मौजूद है, मैं सीडी नहीं पढ़ रहा, लेकिन थोड़ी सी मेरी मदद करना। गुलसमैन सादिक को आपने गुलसमैन सादिक बना दिया। बिस्मिल्लाह। मेरे खान वालों, आपकी दुआओं ने मुझे गुलसमैन सादिक बना दिया। अब मुझे अधूरा न करना, एक जुमला मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। मोहम्मद मुस्तफ़ा सहने तत्हीर में दाखिल हुए, देखा खदीजतुल कुबरा बातें कर रही हैं। बिस्मिल्लाह। जो बेदारी करता है, जो बेदारी जानता है उसका होता है। वाह वाह वाह। घर में दाखिल हुए, सहने तत्हीर में तहारत का मंबा है ना जनाब खदीजा, सहने तत्हीर में दाखिल हुए। अभी सैयदा आई नहीं है जी हाँ। अभी आई नहीं है, रसूल करीब आए, देखा खदीजतुल कुबरा बातें कर रही है, सरगोशी में कोई बात की जाती है, बातें कर रही है। रसूल ने दाएं देखा, फिर बाएं देखा, अरे खदीजतुल कुबरा किससे हम कलाम है? जब भाई दलील दे रहा हूँ, वो जिस माँ की तू बेटी है उसी माँ से बड़ी है, जरा बताएं तो सही किससे हम? यार अल्लाह करे हैदर आपका पिंडाल समझ ले, और मैं मिस्र आपके हवाले करूँ, जिले शाह साहब दुआ फरमाइएगा, बात बड़ी कीमती है। किससे हम कलाम है, किससे बातें फरमा रही हैं? जनाब खदीजतुल कुबरा ने फरमाया, मौला मैं आपको क्या बताऊं, परेशानी की आलम में यही सौगात करती है। जी 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 सलामत रहे। फरमाया जरा बताएं किससे हम कलाम है? फरमाया मौला मोहम्मद मैं वो क्या बताऊं, परेशानी के आलम में यही सौगात करती है, दुखों को भी मेरी तस्कीन के लम्हात करती है। खदीजा ने कहा सरवर हमारी लाडली बेटी अभी आई नहीं है, पर वो मुझसे बात अभी तो कहा है, अभी आई नहीं है, पर वो मुझसे बोलो बात करती है। हाँ, और ये बरादराने अहले सुन्नत से लेके फिका जाफरिया तक, असना शरिया तक, मैं शीश इमामिया की बात नहीं कर रहा, असना शरिया। हाँ, ये बात लाजमन जब भी फिका जाफरिया अपने साथ लिखवाओ, शिया ने हैदर करार लिखवाओ, असना शरिया लाजमन लाजमन लिखवाओ असना शरिया, कि हम इमाम ज़माना तक की इमामत सर उठाना। हाँ, बेशक हर किताब में एक चीज लिखी हुई है, क्या? रसूल अल्लाह के दरबार में जब भी जनाब सैयदा आई, जी मोहम्मद खड़े सर उठाना, मोहम्मद मुस्तफ़ा खड़े हो गए, गई बैठ गई, तवज्जो, फिर आई अल्लाह, फिर गई। एक जुमला पढ़ूं यहीं पे, बिस्मिल्लाह। किसी बंदे ने चलो फिर जिले शाह साहब एक गल करूंगा, अल्लाह करे ए समझ लें, तुसी तो मुल्तान वाले पासे बड़ी अलगारियां सुन रहे जनाब जोरी साहब ने थोड़ी जिंदगी बसरियत है, गल मैं करूंगा, अल्लाह करे अली शाह साहब आप भी आगे मैं बात कर रहा हूं, जाया ना कर देना। एक कंबर बंदा सवाल करने लगा, शाला बंदा बंदे दा बच्चा हो गया, बस मैं ऐसे ही पढ़ सकता हूं। हाँ, खड़ा हो गया, फरमाया ये क्या बात हुई या रसूलुल्लाह, एक दफा आई, ठीक है खड़े हो गए, ठीक है इनफ था, गई बैठ गए, फिर आई उसी दिन, फिर खड़े हो गए, फिर गई बैठ गए, फिर आई, फिर खड़े हो गए, फिर गई बैठ गए। और मैं अकल का इलाज करा, मैं खुद खड़ा होता हूँ, फातिमा में आती है, अल्लाह कहता है मोहम्मद तख्त छोड़ फातिमा आ गई। अल्लाह कहता है मोहम्मद तक छोड़िए, फातिमा आ गई है। एक नक्शा बना दूं अगर आप इजाजत दें, यहीं से एक नक्शा आपके हवाले कर रहा हूं। जनाब सैयदा दरबार मोहम्मदी में दाखिल होती हैं, असूल दीन का लाजिम असूल बैठे हैं। सलामत रहे, यही वजह है रही मेरे खान में पढ़ने का, तवज्जो करना। हाँ, मैं एक मंजर बना रहा हूँ दरबार मोहम्मदी का, जनाब सैयदा दाखिल हुई, हुआ क्या? असूल दीन का लाजिम असूल बैठी हैं, असूल दीन का
اتنا پیارا سن رہے ہو یہ چار مسلمان ہو جائے میں کہہ رہا ہوں اصول دین کا لازم اصول بیٹھی ہے سلام کر کے نبی کا وصول بیٹھی ہے اور نبی نے سب کو بتایا یہ فاطمہ کا ادب کھڑے ہیں احمد مرسل بطول بیٹھی ہے جی سلامت آواز بلند سلام نبی نے سب کو بتایا بطول بیٹھی یہ فاطمہ کا ادب کھڑے ہیں احمد مرسل بطول بطول میں بیٹھی بولو بطول بیٹھی ایک منقبت پڑھتے ہیں اس کے بعد بسم اللہ بسم اللہ اگر آپ اجازت دیں جناب سیدہ ہی بسم اللہ بسم اللہ میں صرف نظر پہ آؤں تو گھنٹوں لگ جائے گا جی جی میں بس میں منقبت کا ماشاءاللہ ایک تری مصرع اسلام آباد بزم مودت سے چلا بسم اللہ ماشاءاللہ اس تری مصرے پہ ہی میں نے ایک منقبت کہی بسم اللہ ماشاءاللہ اگر آپ اجازت دے دیں تو بسم میں اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ گزار کر رہا ہوں ماشاءاللہ میں کہہ رہا ہوں رائج ہے بحر و بر پہ حکومت بطول کی بے شک تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے گا مہربانی کیجیے گا اتنا پیارا سنتے آ رہے ہو کہ یہ منقبہ ضائع نہ ہو جائے کون ہے سیدہ کون ہے مادر شبیر و شبر میں کہہ رہا ہوں رائج ہے بحر و بر پہ حکومت سارے بولو رائج ہے بحر و بر پہ میں دوسرا مصرع پڑھنا ضائع نہ کر دینا رائج ہے بحر و بر پہ حکومت بطول کی واجب ہے عرشیوں پہ اطاعت بطول کی جی سلامت رہیں یہ اٹھی میں ہاتھ خدا قسم اتنا پیارا سن رہے ہیں یہ بھی سید یہ بھی سید ادھر سے بھی سید میں بھی سید یہ سارے یقیناً اور بھی سیدزادے موجود ہوں گے میں کمبر عقیدے والی بات کر رہا ہوں مجھے نہیں پتا اس عقیدے والی بات کے بعد رحیم خان والوں بننا کیا ہے جو سیدہ کے فضائل یہاں سے مانتا ہے یہاں سے سوچتا نہیں ہے وہ سار اٹھائے باقیوں کی مرضی کی بات ہے کون ہے جناب سیدہ کون ہے مادر شبیر و شبر کون ہے بنت مصطفیٰ سار اٹھانا مگر رائج ہے بحر و بر پہ حکومت بطول کی سار اٹھانا رائج ہے بحر و بر پہ حکومت بطول کی واجب ہے عرشیوں پہ اطاعت بطول کی ہاں جس کو کہہ رہے ہو نا جو میں حساب تم دراصل ہے وہ ایک حکومت جی سلامت رہیں یہ اٹھے ہوئے ہاں سلام جی اٹھے ہوئے ہاں سلامت رہیں اللہ یہ اٹھے ہوئے ہاں سلامت رہیں کل ایمان آرہ ہلاری خشنودی مخدومہ کائنات بلند ترین سلام حکومت بطول کی بے شک اطاعت بطول کی عدالت بطول کی ایک شعر یہیں پہ بسم اللہ پھر ابھی بھائی جان بھی ایک شعر فرما رہے تھے وہیں سے پڑھ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں پھر یہیں سے پڑھ رہا ہوں شعر ضائع نہ کر دینا پھر کس طرح سے ان پہ ہو راضی خدا کی ذات شعر سننے والے جوان سر اٹھاؤ ایک مصرع پڑھ رہا ہوں اور اس مصرع میں ایک ہی بات بار بار دہرائی جائے بسم گی اللہ اور میرا سارا کام ہو جائے جی، گا بسم اگر آپ اللہ کو سمجھ میں آ گیا آپ کا بھی سارا لیلۃ القدر کا سارا ثواب آپ کو بسم اللہ ایک ہی شعر کے اندر بیان کر کے دے رہا ہوں امام شادی کے فرمان کے مطابق لیکن سر اٹھانا میرا شعر ضائع نہ ہو جائے مگر پھر کس طرح سے ان پہ ہو راضی خدا کی ذات جن پہ ہو گئی لعنت بطول جی پھر کس طرح سے ان پہ ہو راضی خدا کی ذات جن پہ ہو گئی جن ایک بات کر دی آپ نے سنی امام کے پاس ایک بندہ آیا مولا لیلۃ القدر کی عبادت نہیں کر سکتا اس رات کی عبادت کے لیے جاگ نہیں سکتا کوئی مسائل بن جاتے ہیں کوئی بیماری بن جاتی ہے میں ثواب سے محروم ہو جاتا ہوں امام نے کہا ہے تجھے چاہیے ثواب چاہیے امام نے کہا تجھے چاہیے اس نے کہا جی مولا چاہیے کس کو نہیں چاہیے لیلۃ القدر کی عبادات کا ثواب امام نے پہلا کہا چلو ایک نسخہ ہے 2 لڑے ہوئے مومن بھائیوں کی صلح کروا دیں سننا پوری بات کر دوں یہ پوری حدیث ہے 2 لڑے ہوئے مومن بھائیوں کی صلح کروا دیں ایسا تو کبھی بھی نہیں کیا
दिया मैंने। अब देखूंगा अगर कोई मिल गया ऐसे हुकूमत हर जाते मिल जाना। हाँ ऐसे ही है। उसने उस टाइम कहा कि मौला अब देखूंगा तो फिर करवा दूंगा। कोई और मौला ने कहा अच्छा अगर ये नहीं करवा सकता तो क्या किसी अलीजुल वलीउल्लाह पढ़ने वाले भूखे बंदे को रोटी का लुक़्मा भी नहीं खिला सकता? क्या थोड़ी बहुत आनी चाहिए जनाब सैयदा के नौकरों से। आप सलामत रहे, ये उठे हुए आप सलामत रहे। हाँ क्या अलीजुल वलीउल्लाह पढ़ने वाले किसी भूखे को रोटी का लुक़मा भी नहीं खिला सकता? तो मौला अगर ये भी ना हो सके, लो बस वही बात आ गई जो मैंने बात कर दी। इमाम ने कहा फिर बस घर जाके हमारी सच्ची दादी के दुश्मनों पे लानत करके सो। बाकी भी सारा सलाम अल्लाह के कातलों पे लानत, बाकी भी का हक सब करने वाले गासिबों पे लानत, बाकी भी में जुल्म करने वाले जालिमों पे लानत। बराए खुशनूद ये मखदूम है कायनात बुलंद तरीन सलावत। हुकूमत बतूल की, अल्लाह अल्लाह अकबर, अताअत बतूल की, अदालत बतूल की, लानत बतूल की, लानत बतूल की। एक और मुश्किल शेर आ गया, मदद कर देना और मैं इसी पे सलाम कर दूंगा। मनकबत कम से कम 22 से 24 शेर हैं, मैं बस एक और पढ़ रहा हूं और मैं सलाम करके जा रहा हूँ। सर उठाना बीबी दरबार में है। मैं एक जुमला किताब से आपके हवाले करूँ। बीबी फरमाती है सच्ची हूँ मैं। अरे हमें क्या समझते हो, हमें पहचानो। बीबी फरमाती है मैंने यही पढ़ना है। रहीम खान वालों इस मिजाज पे आ जाओ, ये शेर जाया ना हो जाए। बीबी फरमाती है सच्ची हूँ मैं, सच्ची हूँ मैं, फदक है मेरा मैं अगर कहूँ अल्लाह करेगा कि वकालत बतूल। मैं चाहूँ अगर वो जो दूर पे बोलता रहा वो यहाँ नहीं बोलेगा, वाह, मिजाज पे बोलता रहा वो यहाँ नहीं बोलेगा। सच्ची हूँ मैं, फदक है मेरा मैं अगर कहूँ बेशक अल्लाह करेगा कि वकालत बतूल की। लो आ गया वो तरी मिसरा जिस पे मैंने पूरी मरकबत कही, बस वही पढ़ लो और सलाम कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ है चार दुख्तराने मोहम्मद तो सोचिए। जी वाह 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 वाह। कई मिसरा इसके बाद आ जाएगा और ये आपने गिरा देखनी है कि आपके बच्चे ने गिरा कैसे बांधी है, जाया ना कर देना। मैं कह रहा हूँ ठीक है मौलाना साहब, ठीक है अगर आप कहते भी हैं चार तो फिर एक बात की तो दलील चाहिए, मुदल्लल बात तो फरमाइए। कौन सी बात? गुल हसन सादिक आपके हवाले करा, सर उठाना। मैं कह रहा हूँ मौलाना है चार दुख्तराने मोहम्मद तो सोचिए, क्यों है किस्सा में सिर्फ शराकत होती है। सिर्फ शराकत ही नहीं मरकज मरकजियत है। अच्छा लो जी 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 है चार दुख्तराने मोहम्मद तो सोचिए। आपने छेड़ दिया, मैंने शेर छुपाया हुआ था। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह वही पढ़ देता हूँ। सरवर अली हुसैन हसन है मगर वहाँ। सरवर अली हुसैन, वही बात आप वाली कर रहे हो। सरवर अली हुसैन हसन है मगर वहाँ है जलसाए किसा में सदारत। सरवर अली हुसैन हसन है मगर वहाँ है हाँ जलसाए किसा में। चलो मक्ता भी पढ़ देता हूँ। सलाम सुनना, सादिक बतूल ने भी अली की ही बात की। काफिया सोचो कि मैं क्या काफिया पढ़ने लगा। काफिया सोचना, इतने काफिया भी तो बहुत छोड़ दिया, लेकिन बस मक्ता और सलाम। सादिक बतूल ने भी का लुत्फ लेना और अगले मिसरे की गिरा देखना। सादिक बतूल ने भी अली की ही बात की, यानी है मुस्तफा से रिसालत बतूल।
बतूल ने भी अली की ही बात की, अली की बात की। यानी है मुस्तफा सी रिसालत, बतूल रिसालत। जी। हाय, अल्लाह। आदन रिसालत। राइज है जहरों पे हुकूमत, बतूल कौन जाने ज़माने के फहमो गुमान में कहाँ से जनाब सैयदा का मिजाज। ज़माना नहीं जान सकता कि इस बीवी का फराइज क्या है। बेशक। फातिमा उम्मे अबीहा, आपने बात की है ना मोहम्मद अली शरीयती जी ईरान वाले, उन्होंने जब किताब लिखी फातिमा, जब लिखा शुरू, एंड पे क्या लिखा उन्होंने? एंड पे उन्होंने लिखा है फातिमा फातिमा, नहीं पहचान। जी ऐसे ही है जी, हकीकत है। हम लो शेख यही से पढ़ देता हूँ, हम खाकियों से खाक बयां हो सकेगी, हाय 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 खाक बयां, खाकियों से खाक बयां हो सकेगी, अल्लाह जानता है हकीकत, अल्लाह जानता है। अल्लाह जानता है। अल्लाह। ताजुद्दीन हैदरी साहब अल्लाह मुकामहू पढ़ा करते थे ना, जब हालात ठीक थे, मोमिनीन भी समझते थे। आज तो सवाल लेके खड़े हो जाते हैं ना, तो दलील निकालो जी। वो तो खैर किताबें सामने रखते थे, वही खोल देते थे। हमने तो वो मदरसे भी जी सुनी, ऐसे ही है, बीबी की ये मिजाज वहीं से जब उन्होंने मरकज बीबी को बनाया, और बनाया अल्लाह ने बनाया। हकीकत वजह तख्लीक कायनात। बेशक मजाक पढ़ता की क्या है, यही तो था छुपा हुआ, अल्लाह पढ़ता वो दुनिया ऐसे नहीं ही समझती, ऐसे ही है। अल्लाह छुपा अकबर। हुआ फातिमा नाम ही काफी है रोने के लिए, अल्लाह। बहुत है एक नाम। फजाइल जितना भी पढ़ा जाए इस बीबी का, और शायद फजाइल से भी बहुत ज्यादा कहीं आगे। ऐसे तो नहीं फरमाया बाबा जितनी मुसीबत तेरी अगर दिन पे पड़ जाती सजा रातों में बदल जाते हैं, पहाड़ों पे होते तो रेजा रेजा। फातिमा उम्मे अबीहा, फातिमा अपने बाबा की भी माँ है। मुसलमानों कम से कम ये हदीस तो सच्ची होती है, तुमने मोहम्मद की माँ को ही दरबार से अल्लाह, किस तरह का दावा है इसके मोहम्मद है, किस तरह का दावा रखते हो कि फातिमा दरवाजे पे आई और तुमने खाली लौटा दिया। अल्लाह दर्जात बुलंद करे जनाबे नासिर अब्बास मुल्तान वाले शहीद, उन्होंने बड़ा कमाल जुमला कहा था शहादत जनाब सैयदा पढ़ते हुए। उन्होंने कहा नहीं बनता था, नहीं बनता था यार, ये सोच के ही दे देते कि मांगने वाली फातिमा, अल्लाह अकबर, जो सामने खड़ी है, जो सायला बन के खड़ी है, जो मोहम्मद की पाक बेटी फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा है। अल्लाह अकबर, कितना रो उन्होंने कहा गदा हो। दो जुमले सुन लेना मसाइल के और मैं सलाम कर दूंगा। बड़े मान से दरबार में आई है फातिमा, बड़े मान से जनाब फिजा की तरफ देख के फरमाए, फिजा मुझे याद है वो जमाना, अभी मेरे बाबा की रहलत से पहले जब मैं दरबार में जाती थी, मेरा बाबा दरवाजे तक मुझे लेने आता था। फिजा हमने दरबार में सीधा नहीं जाना, हमने दरवाजे पे खड़ा होना है, हमने इंतजार करना, यकीनन बाबा के चाहने वाले, बाबा के सहाबी, बाबा से मोहब्बत करने वाले मुसलमान फातिमा को दरवाजे तक लेने आएंगे। अल्लाह करे तुम हाय कर सको। शेख मोहम्मद अब्बास गुमी फरमाते हैं कम से कम 2.5 घंटे दरवाजे पे खड़ी रही है, कोई लेने नहीं आया। कहती रही अम्मा फिजा, मुझे लगता है बाबा के बाद मुसलमान बदल गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अजरकुम मिन सय्यदा। हाय करना, जरूर हाय करना। और मैं इन मजालिस में, आयाम फातिमिया के मजालिस में हर मिंबर पे गुजारिश कर रहा हूँ कि कल तक तुम जिसे रोते रहे हो ना, उसे हुसैन कहते हैं। जिसे तुम आज रोने बैठे हो ना, इसे फातिमा कहते हैं। हर मजलिस में ये माँ जाती है बेटे का पुरसा लेने, अगर समझ लो, हर मजलिस में ये माँ जाती है अपनी औलाद का पुरसा लेने। आज माँ नहीं, आज औलाद आई। किसी के पहलू में हसन होगा, किसी के पहलू में हुसैन होगा, कहीं दरवाजे पे अब्बास होंगे, कभी तू रो न सके और हसन तुझे कहे तुझे पता जो नहीं मुसलमानों ने मेरी माँ को तमाचा कैसे मारा।
अल्लाह अकबर, अल्लाह अजरकुम मिन सय्यदा। बड़ी मकबूल मजलिस, बीबी तुम्हारी हाय कबूल फरमाए। बस शुरू कर दिया मैंने मसाइब, अगर तुम हाय कर सको। तारीख कहती है दरबार से बीबी उठी खाली दामन, कुछ नहीं मिला, दरबार से उठी। यहाँ से दरवाजा कितने कदम, कंबर कितने कदम होगा चचा मकबूल? 50 कदम, 40 कदम, 30 कदम, इतना ही होगा ना। यहाँ से आप दरवाजे तक बंदा जाए। तारीख कहती है बीबी के दरवाजे से लेकर मस्जिद तक कम से कम 70, ज्यादा 90 कदम का फासला था। 70 या 90 कदम का फासला आप ही कर लो। जो बंदे कहते हैं शिया रोते क्यों हैं, उनसे कहना 70 या 80 कदमों का 90 कदमों का फासला करो और फासला करके वापस पलटो, देखो तुम्हारे बाल सफेद हो। करोगे माता, मगर हाय कर सको बताओ बिन्ते मोहम्मद के मसाइब क्या है? ऐसे रुला के मारा है मोहम्मद की बेटी को मुसलमानों ने। 70 कदम गई है, 70 कदम वापस आई है, पूरे 140 कदम बने। 140 कदम के बाद सर के बाल सफेद हो गए थे, कमर झुकी हुई थी। आलिया पूछ रही थी अम्मा, और सर के बाल क्यों सफेद हो गए? ज़हरा ने रो के कहा ज़ैनब, मैं आज मदीने में शाम का दरबार देखा। अल्लाह अजरकुम मिन सय्यदा। आज मैं यसरिब में शाम का दरबार देखाई, आज मैं मदीने में करबला हुसैन का सजदा देखाई। रो के फरमाया मुसलमान बदल गए हैं आलिया, हालात बदल गए हैं। बस हाय करते हैं ना, 2 जुमले और सुन लो और मैं सलाम करके जा रहा हूँ। साहिब बिहार फरमाते रोते हुए मौला अली जनाब सैयदा के पास आए, आके बैठ गए। फरमाया बतूल लजपाल बाबा की लजपाल बेटी है, सखी बाप की सखी बेटी है, माफ कर दे। माफी मांगने आए हैं, एक एक हर्फ का जिम्मेदार खड़ा हो, माफी मांगने हैं। वल्लाह बा खुदा तारीख कहती है अगर माफ कर देती हम माफ कर देते, अगर बतूल माफ कर देती हम माफ कर देते। अनोखा जुमला है, अगर हाय कर सको कंबर। मौला अली ने फरमाया माफ कर दे। सवाली बन के आए हैं, माफी मांगने रहे हैं। बतूल रोई, हिचकियों से रोई, सिसकियों से रोई, तड़प तड़प के रोई। रो के फरमाया या अली, बेशक मैं सखी बाप की सखी बेटी हूँ, मैं लजपाल बाबा की लजपाल बेटी हूँ, लेकिन 2 काम ऐसे मुसलमानों ने किए जो ज़हरा को अंदर से मार गए हैं, जो फातिमा का कलेजा जला गए हैं। मेरा कलेजा कबाब की तरह हो गया है। फरमाया फातिमा कौन से काम? रो रो के फरमाया पहला काम, एक मुसलमान ने मुझे इतनी जोर से तमाचा मारा है, मेरा गोशवारा उतर के जमीन पे गिर गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाय करना, हाय की सदा बुलंद होनी चाहिए, हाय की सदा बुलंद होनी चाहिए। अब जिनकी औलाद है वो हाथ बुलंद करें, मिन्नत करें। जिनकी औलाद है वो हाथ बुलंद करें। जिनकी औलाद है आप सबकी है, जिनकी नहीं है मेरे अल्लाह मातमी बेटी अता फरमाए, मेरे अल्लाह हैदर को मातमी बेटा अता फरमाए, और जिन्हें बेटे दिए हैं अल्लाह बेटियां जरूर अता फरमाए। अजीब जुमला है, अल्लाह करे तुम समझ लो कि मोहम्मद की बेटी की गुर्बत क्या है। फरमाया या अली, पहला मसाइब ये है कि एक मुसलमान ने मुझे इतनी जोर से तमाचा मारा है कि मेरा गोशवारा उतर कर जमीन पे गिर गया। फरमाया बस क्या कोई और भी है? फरमाया हाँ, एक दुख और है जो ज़हरा को अंदर से मार गया, जो ज़हरा को अंदर से मार गया। अल्लाह न करे वो बंदा बतूल का मातमी हो जो हाथ रखे और अब मातम न कर सके, जो बतूल को अंदर से मार गया। फरमाया ज़हरा कौन सा दुख? और फरमाया दुख ये है जब उस मुसलमान ने मुझे तमाचा मारा है, मुझे हसन देख रहा था, हसन के सामने और मुसलमान ने और मेरी ज़ौजा ज़हरा को अल्लाह अजरों को मिला सैयदा, अजरों को मिला सैयदा। फरमाया ये दुख मुझे नहीं भूलता, मैं ये दुख लेकर बाबा की बारगाह तक जाऊंगी, दरबार मोहम्मद तक जाऊंगी, दरबार खुदा तक जाऊंगी, मैं उन्हें माफ नहीं कर सकती। नाराज होकर मोहम्मद की बेटी दुनिया छोड़। सलाम, एक जुमला और सलाम। अभी मुझे लग रहा है हुसैनी पढ़ना है, वहाँ तफसीलन नमो साहिब के 2 जुमले और पढ़ूंगा। अगर तुम है कसम नाराज होके मोहम्मद की बेटी दुनिया
टुट गई मोहम्मद की थी, इससे आगे मसाइब है नाराज होकर। चलो यही पे मैं बदलता हूँ जुमला, वो भी एक जुमला और पढ़ देता हूँ। कोई बीमार हो चचा मकबूल, कोई बीमार हो, जब जाते हो आयादत के लिए शाह साहब क्या होता है, वो ज़ईफ़ 70 साल का भी होगा ना मौलाना साहब, वो दुआ करवाएगा, यार दुआ करो अल्लाह मुझे अल्लाह अकबर अजरा को मेरा सैयदा अल हो के मसाइल में रहे सैयदा, इससे आगे मसाइल यही रूहानियत है। बीबी तुम्हारी हाय कबूल करे, अभी भी जो हाय न कर सके आखिरी जुमले है हाय की खैरात ले लो और मैं सलाम करके जा रहा हूँ। यही करते हो ना, दुआ मंगवाते हो, इयादत के लिए जाते हो, फल फ्रूट ले जाते हो, दुआ करते हो, अल्लाह तुझे शिफा दे, वो भी यही कहते हैं यार मुझे शिफा दे। और अल्लाह ना करे बच्चों की माँ बीमार हो, जिनकी माएँ हैं ये उन्हें पता है या जिनकी नहीं है ये उन्हें पता है। बच्चों की माँ बीमार हो जाए ना, बच्चों को जुल्फे याद नहीं होती, बच्चों को उनका लिबास याद नहीं होती, बच्चों को अच्छे खाने याद नहीं होते, और जब वो माँ के पास होती है ना तो माँ पता क्या कहती है, बच्चों दुआ करो तुम्हारी माँ शिफा याद हो जाए, मैं तुम्हारे बालों में डलियां लूंगी, मैं तुम्हें उनका लिबास पहनाऊंगी, मैं तुम्हें अल्लाह करे बतूर के वक्त भी हाथ मार सको, मैं तुम्हें अच्छा खाना खिलाऊंगी। अल्लाह की कायनात में पहली और आखिरी माँ है जनाब फातिमा ज़हरा, हसन और हुसैन को बिठाती थी और वो के कहती थी हसनैन दुआ करो माँ मरे, ओ दुआ करो फातिमा ज़हरा, ओ दुआ करो हसनैन अम्मा मर जाए और तुम्हारी माँ की पसलियाँ टूटी हैं और मुझे सांस मेरे अल्लाह फुर्सत कबूल फरमा।